यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट एरर के बारे में। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? द एरर एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो उसका रेजोल्यूशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्केल रहती है, नॉर्मल स्केल जो हम यूज करते हैं 300 mm की स्केल रहती है, 300 mm, the length of that scale is 300 mm. If somebody asks what is the resolution of that scale, what is the resolution of that scale? Resolution means the least count of the scale. Least count is the distance, minimum distance which can be measured with the help of that instrument. That is called the resolution. That is how much? That is 1 mm in case of 300 scale, 1 mm. And same, if you change the instrument, like if you change the instrument, you take the vernier caliper, what will be the least count? 0.01 mm means this vernier caliper can measure a distance up to 0.01 mm. Now this is least count error. Now we will discuss one more thing. What is the true value? Just now, before this, we have discussed about true value of the measurement. How we find the true value of the physical quantity? See, if you have, for example, I will take a physical quantity length. For example, length, I take example of length. So what I will do, I will take any measuring instrument and I will measure this length n times. N times means many times I will measure this length and I will take the average. Like first reading L1, second reading L2, L3 plus that n times if I take this measurement and take the average. So this will give me the length of this physical quantity. So this value of L is same as the true value. What we call is true value. How we calculate the true value? True value is same as this mean value of the measurements. So true value is the mean value of the n observations. True value is the mean value of n observations. Mean value of n observations. Now here we will talk about the what is the absolute error. Absolute error. So before going to the definition, I will give you one example. Say we are going to measure one physical quantity, any physical quantity. It may be the mass, it may be the length, it may be the time or anything. See, first time we have measured, we got the value A1. Second time we have measured that value, we got the value A2. Third time we have measured the same physical quantity, we got the value A3. Because due to some least count, because it has a least count. For example, we are measuring it is the length is coming 2.53, next time it is coming 2.54 or 2.55. So every time it will change. And n time we have measured, nth time you got the value an. Now means every time this value is getting different. You are getting different value for the measurement. So you take the mean value. What will be the mean value of this? A1 plus A2 plus A3 plus an upon you have done n times you have measured. So this is the mean value. You will get the mean value here. यहाँ पे mean value calculate की, it will be same as what is the mean? It will be same as the true value. We will consider this as a true value, right? So what will happen? Now we come to the absolute error. What is the absolute error? Absolute error is the difference. It is the difference between difference of magnitude. Is the difference
in magnitude, difference is magnitude of mean value and measured value, So you see here, it is always positive. We are calculating here the difference. Difference means difference is always positive. If we say like what is the difference between 3 and 5? It is 2. It is not minus 2. What is the difference between 5 and 6? It is 1. So the difference is always positive. That's why we are putting here mod value. We are putting here mod. Mod means it makes the thing positive. Always positive. Mod means always positive. So what is the absolute error? Is the difference between the magnitude of mean value and the measured value. See, the mean value is a mean. So the absolute error in the first measurement, when we have measured first time, what will the absolute error is? We will denote by delta A1. Mod of delta A1 is equal to A1 minus A mean. Same in the second observation, delta A2, mod of delta A2 is equal to A2 minus A mean. Similarly, mod of A3, mod of delta A3 is equal to A3 minus A mean. And dash mod of delta AN is equal to AN minus A mean. Okay. So what is this mod? This is the absolute errors with respect to the observation. In the first observation, this is the absolute error. In the second observation, this is the absolute error. In the third observation, this is the absolute error, and in the nth observations. So we got here absolute error. What is the absolute error? Now one more thing we can conclude here. For absolute error, we can also calculate the absolute mean of absolute errors. Mean of absolute errors. Here we are getting absolute errors every time in the each and every observation, so we can calculate the mean. Mean will be mod of delta A1, mod of delta A2 plus dash mod of delta AN upon N. So this is the mean of absolute error. Mean of absolute error. Or in the different way, we can also represent like this: summation mod of delta AN, or we can say delta AI, where I is equal to 1 to n upon n. So this is the mean value. Now you see here, if we are doing one measurement, then the value we will get in the range of A mean plus minus delta A mod of delta A. That is the value of A measurement. It is always lie between A mean minus delta A mean greater than and less than is equal to A mean plus delta A mean. Okay. So this is all about the absolute error. कहाँ से कहाँ तक A की वैल्यू लाया करेगी? A मीन माइनस डेल्टा A मीन से लेके A मीन प्लस डेल्टा A मीन तक. ओके. अब बात करते हैं हम रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द डेल्टा A mean of absolute error upon A mean. And there is one more, we calculate the relative error like this, and there is one more like percentage error.
we call it percentage error. Why I am explaining all these things? Because if you are going to do the numericals of this exercise, you will need all these things. You should understand why we are calculating and what is the use. So what is the percentage error? Percentage error is delta A mean upon A mean into 100, the percentage of the relative error. So now अभी तक हमने absolute error पढ़ा, relative errors पढ़ा, percentage error पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे combination of errors. What is the combination of errors? Means किसी एक measurement में error की वजह से जो दूसरे उससे related या उससे dependent जो measurements है उसमें जो error होती है उसको बोलते हैं combination of errors. जैसे कि एक example लेते हैं हम density का. I will take one example of density. Density is equal to क्या होता है? Mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. If you have measured the mass of any matter and you have measured the volume of that matter, you can calculate the density, correct? After measuring the mass, maybe there is some error in the measuring of the mass, so that error will come here, and that error you can say delta m, that error will come. And if you are measuring the mass, m plus minus delta m you can say, and if you are measuring the volume, you will get the error here also, plus minus delta v. So you see, you will get a overall error, you will get a error in the measurement of the density also. So that is called combination of errors. Because of the measurement errors in the mass and the volume, you will get the error in the density. Okay, so अब हम यहाँ से थोड़े से एक दो तीन रूल हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होते हैं. एरर्स ऑफ सम एंड डिफरेंस, एरर्स ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस क्या होता है. जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई दो मेजरमेंट हमने किए किसी फिजिकल क्वांटिटी ए के और किसी फिजिकल क्वांटिटी बी के, ठीक है, और वो इज इक्वल टू है किसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जेड के. जैसे यहाँ पे रेशियो में थे, यहाँ पे मान लेते हैं एडिशन में है. किसी ए का हमने मेजरमेंट किया तो हमें वैल्यू मिली ए प्लस माइनस डेल्टा ए. बी का मेजरमेंट किया तो हमें वैल्यू मिली बी प्लस माइनस डेल्टा बी. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सी द रिजल्ट ऑफ जेड और द एरर इन द जेड. When you are getting the error A, in A is A plus minus delta A, B is B plus minus delta B. So क्या error यहाँ पे मिलेगी? We will put the value of A plus minus delta A, and इसको क्या देते हैं यहाँ पे Z delta Z error मिल रही है plus minus Z plus delta Z. We will say anyhow this is plus minus A and plus B plus minus delta B. Okay, put the value of Z here. A plus B plus, or you can give it to A plus B plus minus delta A plus minus delta B. This A plus B will cancel out, so delta Z will be here delta A plus minus delta B. Plus minus delta A and plus minus delta B means maximum error in the Z will be delta A plus delta B. You can say when this is positive, this is also positive. You take plus positive A plus positive A, that time you will get the maximum error. Correct? इसका भी हम पॉजिटिव ले लें, इसका भी पॉजिटिव ले लें, तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम एरर मिलेगी. ठीक है, ये तो हो गया सम में, ये तो एरर होगी सम में. सब में एरर कितनी मिलेगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल. अब हम देखते हैं कोई फंक्शन है जब हम उनको डिफरेंस करते हैं, जब हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें क्या एरर मिलेगी. तो सेम वे में सेम वैसे ही करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे लिखेंगे z प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, तो यहाँ से हमें डेल्टा जेड जो मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी.
क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे इससे ये ए प्लस बी, ए और बी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। जेड इज इक्वल टू यहाँ पे भी ए माइनस बी रखोगे तो ए माइनस बी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से, बचेगा क्या डेल्टा जेड इधर, और इस राइट साइड में क्या बचेगा डेल्टा ए, यानी हम माइनस से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस। तो यहाँ भी जो मैक्सिमम एरर मिलेगी, मैक्सिमम एरर जो मिलेगी डिफरेंस में वो कितनी मिलेगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको भी प्लस ले लीजिए, इसको भी प्लस ले लीजिए, ठीक है, एक टाइम पे तो मैक्सिमम एरर मिलेगी उस टाइम में। हो गया। अब हम इसके बाद में दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज देखेंगे एरर ऑफ ए प्रोडक्ट, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब दो चीजें जब प्रोडक्ट में है तब क्या एरर मिलती है, कोई फंक्शन जैसे हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। सेम वे में a को मेजर करने पे हमें मिल रही है मेजरमेंट जो आ रहा है a प्लस माइनस डेल्टा a आ रहा है, व्हेन वी आर मेजरिंग v वी आर गेटिंग v प्लस माइनस डेल्टा v। तो सेम यहाँ पे रख देंगे z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम करेंगे, इसको बोल देते हैं z प्लस डेल्टा z, इसको क्या बोलते हैं, मान लिया डेल्टा z एरर मिल गया, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे तो a इंटू बी प्लस a माइनस a इंटू डेल्टा बी, ए का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। देखो डेल्टा a और डेल्टा b है, इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, मींस द एरर जो होगी मेजरमेंट में बहुत स्मॉल रहती है, वो लीस्ट काउंट के इक्वल रहेगी, लीस्ट काउंट कितना है उसके हिसाब से रहेगी। तो अगर हम ये डेल्टा a डेल्टा b बहुत छोटी वैल्यूज हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 0.1 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.01 मिलता है, कितना कम मिलता है नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो बिल्कुल मान सकते हैं। इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, इस टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद में दोनों तरफ हम क्या करेंगे, z से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में z से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी अपॉन z प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन z प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a अपॉन z। देखो z की जगह a भी रख दो, z की जगह क्या है a भी है फंक्शन, तो z की जगह इधर राइट हैंड साइड में a भी रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर a भी रखो, यहाँ पे भी a भी रख दो तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b बच जाएगा, यहाँ पे भी a भी रख दो z की जगह तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे बच जाएगा a। तो फाइनली क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। ओके, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो फाइनली प्रोडक्ट के बाद में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो यहां से मिलेगी, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर z इज इक्वल टू a b हमने फंक्शन लिया है तो जो एरर होगी, एरर मतलब एरर कितना है, डेल्टा z इधर है और डेल्टा z अपॉन z क्या है, ये है रिलेटिव एरर। हमने थोड़ी देर पहले बताया था, तो हम यहाँ पर रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिव एरर मिल जाएगी इस फंक्शन में। रिलेटिव एरर क्या होगी, इनमें एरर होने की वजह से, तो रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, रिजल्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो ये तो यहाँ पे पावर रेज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इंटू ए सेम फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है।
जेड प्लस जेड इज इक्वल टू ए इंटू ए की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, ए प्लस डेल्टा ए और ए प्लस डेल्टा ए। एक तो तरीका ये है ए की वैल्यू रख दें सेपरेट सेपरेट। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट वाला फार्मूला निकाला था यहाँ से, क्या था प्रोडक्ट वाला फार्मूला, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा दीजिए, जेड इज इक्वल टू जब ए बी दे रखा हो, जेड इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू ए है, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू ए। ये तो डिफरेंस है, तो या तो मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लो, या दूसरा तरीका है इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। इसका मतलब जो भी पावर है वो क्या आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है आगे। अगर हम कोई नॉर्मल जनरल अगर हम बात करें, जनरल कोई हमारा फंक्शन है a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर z, or we can say x y z, in place of x y z we can take p q r, and take p q r, a की power p q r. Okay, so that error in the relative error in the function z will be p into delta a upon a plus q into delta b upon b plus r into delta c upon c. So ये हो गया एरर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे पहली चीज होते क्या है, सिग्निफिकेंट जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेने पे कोई वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल कोई हम वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 1.65 सेंटीमीटर हमने किसी की लेंथ मेजर की और वो वैल्यू आई, that value we have measured with an instrument, and it came 1.65 सेंटीमीटर। अच्छा 1.65 सेंटीमीटर हम किससे मेजर कर सकते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हमने यूज किया हो, वर्नियर कैलिपर यूज किया हो, सॉरी इफ इट इज ए mm, वर्नियर कैलिपर यूज किया हो हमने, ठीक है, वर्नियर कैलिपर यूज किया हो, मे भी हो सकता है मेजर करने के लिए। तो ये जो रिजल्ट व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, इसमें दो तरह की डिजिट्स होती हैं। वन इज कॉल्ड रिलायबल डिजिट्स, रिलायबल डिजिट्स जैसे 1 and 6 आर रिलायबल डिजिट्स। 1.65 में इन 1.65 1 and 6 आर नोन एज रिलायबल डिजिट्स एंड 0.5 इज नोन एज first uncertain digit, first uncertain digit. Uncertain, why we are saying this as a first uncertain digit, because when we have measured this value with the use of vernier caliper, so vernier caliper का least count resolution कितना था, 0.01 mm, वर्नियर कैलिपर से यूज किया, उसका रेजोल्यूशन कितना है, 0.01 mm। इसका मतलब वो जो एरर प्रोड्यूस कर सकता है वो डेसिमल के लास्ट डिजिट में ही आएगी। एरर जो होगी जिस प्लेस पे आएगी वो इस प्लेस पे ही आएगी, ना कि इस प्लेस पे। मतलब ये वाली वैल्यू जो है सर्टेन है, इसमें कोई एरर नहीं है, बट क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सेकेंड डेसिमल पे है, इसलिए जो एरर मिलेगी वो हमें इस पे मिलेगी, डेसिमल के सेकेंड प्लेस पे। इसका मतलब इस वैल्यू को 0.5 हो सकता है सेकेंड टाइम आप मेजर करें तो ये 1.64 मिले। मींस कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाली वैल्यू, सेकंड वाली। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे क्या क्या होते हैं, रिलायबल डिजिट्स होती हैं और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होती है, और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होती है। ये हमें याद रखने हैं। और बाकी हमें कुछ रूल्स याद करने हैं मेजरमेंट्स में। रूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट है, कौन सी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। कौन कौन से रूल है वो, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल कोई मेजरमेंट्स हमने लिया एंड इट केम आउट 1 2 3 4 मिलीमीटर, दे ऑल आर नॉन जीरो, ऑल आर
non-zero digits. So all non-zero digits are significant. सभी के significant है, चारों digits. So how many significant figures are here? 4 significant figures. 4 significant figures. ठीक है? 4 significant figures. अब कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मान लिया 2.345 mm. इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4. All are non-zero. All are non-zero figures. All are non-zero numbers. So there are 4 significant figures. All the zeros between two non-zero digits are significant. All the zeros between two non-zero digits are significant. जैसे for example, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमने कोई मेजरमेंट किया 2.3068. How many significant figures are there? 5 significant figures. 5 significant figures हैं इसमें. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures. All the zeros between two non-zero digits. देखो यहाँ पे एक जीरो आया है. There is one zero here. So ये जीरो को भी 2.3068 में हमने क्या किया है? इसको भी significant figures consider किया है. मतलब ये significant figure ही consider किया जाता है. अच्छा, अगर ऐसा होता 1, 2, 3, 0, 0, तो इसमें तो जो जीरो आ रहे हैं वो significant नहीं होते. तो इसमें हम significant figures को consider करेंगे सिर्फ इतना. 3 significant figures. 3 significant. आगे हम पढ़ेंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं. If number is, ये याद रखना है, अगर जीरो किन्हीं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट रहता है. If number is less than 1, कोई नंबर है वो less than 1 है, the zero of the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. For example, number less than 1, कोई less than 1 का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई नंबर less than 1 है 0.0095. दिस नंबर इज लेस देन 1. तो लेस देन 1 है, इतने mm आपने कोई डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मेजर की है. तो इसमें अगर कोई पूछता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर, ओनली 2 significant figures. Only 2 significant figures. Only 2 significant figures. Only 2 significant figures means the number of zeros to the right of the decimal and before the non-zero number are considered as a non-significant. इन zeros को जो decimal के बाद हैं 2 जीरो और non-zero number से पहले होते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं? non-significant figure माना जाता है. ठीक है? अब आती है फोर्थ रूल क्या है? ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग जीरो, जैसे कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये बताया, ट्रेलिंग जीरो 204,000. ठीक है, mm, ये किसी की डिस्टेंस मेजर की. तो व्हाट आर द ट्रेलिंग जीरोस? ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट. इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है. तो ट्रेलिंग जीरो जो आएंगे वो नंबर्स के बाद 24 के बाद वो नॉन सिग्निफिकेंट है. मींस इन 24,000 these 3 zeros are non significant. These 3 zeros are non significant. समझ गए ना? अगर यहाँ पे डेसिमल होता, फॉर एग्जांपल अगर डेसिमल लगा होता 24.000, now in this case you tell me how many significant figures are there. In this case the number of significant figures are 5. You know why? Because now the after decimal there are 3 zeros. These are significant. क्यों significant है? क्योंकि इस वैल्यू को जिससे आपने मेजर किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, उसका प्रेसिजन जो है या लीस्ट काउंट जो है या रेजोल्यूशन जो है वो पॉइंट के 3 डेसिमल तक है. 0.001 को वो मेजर कर सकता है.
इसीलिए जब आपने मेजर किया है इसकी वैल्यू 24.00 आई है, इसका मतलब इसके जो लास्ट वाले जीरो हैं दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो डेसिमल के बाद में जो जीरो होते हैं, डेसिमल के बाद के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट नॉट इन दिस केस। नंबर इज लेस देन 1 देन द रूल इज डिफरेंट, इट इज इन केस ऑफ ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिफ्थ रूल क्या है? ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद, ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस in a number with a decimal point are significant। ठीक है, जैसे हमने ये बता दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेम एग्जाम्पल, ट्रेलिंग जीरोस। अब यहाँ पे कोई ट्रेलिंग जीरोस जैसे ऐसे भी ले सकते हो, कोई क्वांटिटी में से 3.00। समटाइम्स ये क्या होगा, 3 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 3 लिखा हुआ मिलेगा, कुछ लोग 3 लिख देंगे। तो क्या डिफरेंस है इसमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3, दिस 3, दिस 3? The only difference is the significant figures. Only difference is the significant figures. Significant figures का ही difference है। यहाँ पे significant figures में 3 हैं, यहाँ पे significant figures 2 है, यहाँ पे significant figures 1 है, सिर्फ only 1। क्योंकि जिससे ये मेजर कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसकी जो प्रिसीजन है, उसका रेजोल्यूशन है, वो यहाँ पे 0.01 तक है, यहाँ पे 0.1 तक रेजोल्यूशन है उसका, यहाँ पे 0 resolution, 0.0 resolution, means you can say here it is 1 resolution is 1।